Good morning, my dear children. In previous video, we have discussed about Rutherford's model of an atom. He told that in an atom, most of the places are empty, and in the certain place, in the smaller place, that is known as nucleus, in which protons is present, or protons are present. Okay, and electrons revolve or moving around the nucleus in the circular order, and due to the moving in circular order it will accelerated, and due to the acceleration electrons will lose energy, so it will fall in the nucleus, due to which atoms will be unstable. So whatever problems are arises in the Rutherford's model of an atom, that is corrected by the Bohr's. Niels Bohr was a scientist who has corrected the mistakes made by the Rutherford. Okay, Rutherford had given their atomic theory in 1911 and 1913. 1913. In 1913, Bohr's given their atomic model, in which whatever problems are arises, that is corrected by the Bohr's. प्रॉब्लम क्या अराइज हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक ऑर्बिट में, around the nucleus, then it will radiate or lose the energy. So Bohr ने दो चीज़ें बताया. First, when electron move in a circular orbit, it will not radiate energy. First thing. Second thing, उन्होंने बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में, एक ही पाथ में मूव नहीं करेगा. Certain numbers of electron will move in a particular orbit. Okay बेटा. That is nucleus. He said that around the nucleus certain or fixed number of electron will revolve around the nucleus. मतलब इसको उन्होंने नाम दिया था एनर्जी सेल्स. ओके, these are the energy cells और ऑर्बिट और पाथ, जिसके अराउंड, जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा. ओके बेटा, तो दीज आर द एनर्जी सेल्स एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, दैट वन इज के सेल, सेकेंड वन इज एल सेल, दैट वन इज एम सेल, and last one is N cell. तो KLMN 4 सेल्स दिया था उन्होंने बेटा. बोला कि ये नंबर्स ऑफ सेल है. फर्स्ट वन N, यहाँ पे बेटा ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है. तो अगर हम नंबर ऑफ सेल को N से डिनोट करेंगे, इफ द नंबर ऑफ सेल्स आर डिनोटेड बाई N, देन N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. Okay, and 1 means first cell, and 2 means second cell, and 3 means third cell, and 4 means fourth cell. Okay beta, he said that he accepted that कि protons are present in the nucleus, and problem is arises here due to the movement of electron and loss of energy. तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट लॉस एनर्जी, विल नॉट लूज एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड सर्टेन एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ पार्टिकुलर सेल और पार्टिकुलर ऑर्बिट. सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, जैसा रदरफोर्ड ने बताया गया था कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ही ऑर्डर में मूव करेगा, एक ही ऑर्बिट में. तो इन्होंने करेक्ट कर दिया कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. देन हाउ कैन वी फाइंड दैट, एंड कैसे पता चलेगा कि किस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. फॉर दैट ही हैड गिवन अ फॉर्मूला दैट इज 2n square.
ओके। इन पार्टिकुलर शेल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था, दैट इज 2n²। ओके बेटा, सो 2n² फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन फाइंड दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पार्टिकुलर सेल। हियर n इज नंबर ऑफ शेल, so first cell means 1, put here first cell means K cell, फर्स्ट सेल बेटा मतलब K सेल, K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, K सेल मीन्स फर्स्ट सेल दैट इज n इज इक्वल टू 1, सो 2 into 1² you will get 2 into 1 that 2, so in the first orbit only 2 electron will move, पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे बेटा। सिमिलरली इन द सेकेंड वन दैट इज द L cell, so for finding the number of electron in L cell you have to put here n is equal to 2, n is equal to 2 क्यों, क्योंकि सेकेंड सेल की बात हो रही है, so put here K cell के बाद L cell, then you have to put here 2 raised to 2, so 2 into 2 to the 4, 8 electrons, so 8 electron will move around revolve around the in the second cell, okay beta। Similarly you can find the number of electron revolve in the third cell and number of electron revolve in the fourth cell, are you getting my point beta? So that is the Bohr's atomic model beta। And one more thing, one table is given in your textbook, see that table, उसमें से 18 एलिमेंट्स दिया हुए हैं, जस्ट इन द सीरीज इन द प्रॉपर ऑर्डर, सिंबल्स उसके याद करो बेटा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, एटलीस्ट ये चीज़ें आप याद करो, ओके। वन मोर थिंग हियर वी विल डिस्कस, आपको एक टेबल दिया है उसको याद करो, उस टेबल से मैं आपको थोड़े से कुछ बता रहा हूँ बेटा। फर्स्ट वन दिया है हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज हीलियम, थर्ड वन इज लिथियम, फोर्थ वन इज बेरिलियम, फिफ्थ वन इज बोरॉन, सिक्स्थ वन इज कार्बन। ये 6 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा सेल में, फॉर फर्स्ट that is nucleus, nucleus के अराउंड that is the first cell, that is the K cell, K cell में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन एटम फर्स्ट प्लेस पे है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ओके बेटा। तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, आप टेबल से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये हो गया हाइड्रोजन का। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा बेटा। एंड इफ यू टॉक अबाउट हीलियम, हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। प्रोटॉन्स तो आपका इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ऐसा डायग्राम आएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली फॉर लिथियम बेटा, बट you can see in the table lithium have 3 electrons, उस टेबल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिया हुआ है बेटा, आपको वो टेबल इन एनी हाउ प्रिपेयर करना है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और हम इसमें तीसरा नहीं बना सकते, वाई अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल बेटा, इन पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, by using the 2n², so only 2 electrons can accommodate in for first cell beta,
so we have to make here second cell. ये इस तरह से हो जाएगा आपका लिथियम का बेटा। ऐसे ही सबके 18 के दिए हुए वहां पे लेफ्ट पेज पे उसको अच्छे से देखो, अगर समझ में आ रहा है अरेंजमेंट। देखो बेटा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट का आपको बनाना है ऐसा सिमेट्रिक डायग्राम वो देखना है आपको। सपोज आपको कार्बन का बनाना है, सो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में कितना होगा मैक्सिमम 2, पुट 2, दूसरे में कितना जाएगा बचा हुआ 4, कितना बचा 4, तो दूसरे में हम 4 डाल देंगे। सपोज यू हैव सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी द टेबल नहीं देखो समझ में नहीं आएगा, ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा, बट एक बार आप टेबल्स अच्छे से देख के आओ। ओके बेटा, सो सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन, सो इन द फर्स्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा? सोडियम मीन्स Na, इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन, सो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड में मैक्सिमम 8, सो नाउ रिमेनिंग इज 1। तो पहले सेल में 2 आपको राउंड करना है ऐसा, एंड नेक्स्ट में 8, और इसके लिए 3 सेल्स यूज होगा। तो ऐसे ही 18 एलिमेंट्स का दिया हुआ है अप टू ऑर्गन, फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑर्गन दिया हुआ है। वन मोर थिंग बेटा, ऑलरेडी थॉमसन ने हमें स्टार्टिंग में बताया था क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सिमिलर इन एनी एटम, किसी भी एटम में, और जितना उसका पोजीशन आएगा जिस नंबर पे पड़ेगा, मतलब अगर 5वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, वो नंबर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा। ओके, एटॉमिक नंबर, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है वैसे उनका एटम्स का नंबर एटॉमिक नंबर, वो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अंडरस्टूड? तो इसके बारे में कल फिर से बात करूंगा आपसे, बट बिफोर दैट जस्ट सी द डायग्राम विच इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड पेज एज वेल एज दैट टेबल। फ्रॉम द टेबल prepare the symbols of the elements in the order. If you will prepare in the order then you will get the idea that कि 7th पे कौन आ रहा है, 9th पे कौन सा आ रहा है। सो सपोज 9th पे जो भी एलिमेंट्स आएगा फ्लोरीन, सो यू विल गेट द आइडिया दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर 9, सो वी हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में 2 अरेंज करेंगे, कितना बचा 7, तो सेकेंड में 7 अरेंज होगा। इस तरह से आपको आइडिया होगा। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हुआ था बेटा, दैट टाइम न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुआ था 1932 में, एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये आपका 1900 से लेके 1911-13 तक इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। ओके, जेम्स चैडविक हैव डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन द 1932। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, neither contain positive charge like protons nor contains negative charge like electron. Okay, and it is neutrons also accommodate inside the nucleus, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम बेटा। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 2000 टाइम लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, और you can say that mass of neutron. Understood beta? Next video we will discuss about valency and arrangement of electrons in a particular orbit.